Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent and the most merciful. I am recording this video. You are going to hear just the audio of this recording, as I'm not shooting the video. But the purpose of this video is a step forward towards the improvement of this educational system in Pakistan. I have studied in English medium environment of this country. Fortunately, I am one of the blessed students of this country who have been sent to good English medium schools. And spending 10 years of my life with such kind of schooling environment, I consider myself as one of the lucky girls of this country. But what I believe is, whatever you learn, you must deliver that learning to your descendants, to your followers, to your juniors, so that it may be helpful to them to pursue their life in a very easy way. As I coming from a backward area, a village kind of environment, for me this schooling system and this Oxford syllabus and this tough educational routine was very much difficult, and I comprehended this system of knowledge and education taking 16 to 18 years of my life. My fellows were not very much challenged because they were residents of cities from years and years. But since we are coming from backward area, a village, and we were experiencing all such kind of environment for the very first time, and I was doing it all alone without even my parental support, all on my own. So it was difficult for me. It took me more time to understand all this educational system, and I'm sure many Pakistani students still they are struggling and suffering with this educational system, and there is no one in this country who can sort out their queries, who can sort out their problems. Many of them are coming from backward villages, many of them are coming from less developed areas, many of them are coming from poor family backgrounds, many of them are coming from very challenged kind of environments. But on government level and on our social level and or our at media, we are unable to find any such kind of personality or any person who is trying to sort out these problems our youth is facing actually, or our this generation is facing. Most of the people I have seen and happened to meet in this country, I'm sorry to say this is my own homeland, I'm sorry to say they are my own people, but most of them create hurdles for others. They do not support and encourage other people pursuing their goals and careers, or if they are doing something good, तो उसमें उनको वो लोग हेल्प आउट करने की बजाय they try to hinder their life and hinder their performance, and ultimately they lack their enthusiasm and hearts to do something good for the country. If they are not going to be acknowledged, if they are not going to be
appreciated or encouraged, they are going to lose their interest. Um, this was the very first thing I wanted to share. Coming towards the real purpose of this video, this is basically I have made it for the students of this country who are going to face challenges in selection of their subjects during their metrics, as most of the students of this country are going to do metrics, not go will go for AO levels, as very few families can afford or know about this system. Most of the students are coming from Pakistan. They still know the concept of metrics and FACs, and even most of them even don't know what are these. So when a student is sent to any Pakistani school, when a school is chosen for the person in this country, it is his or her parents' responsibility to take notice what the school system is all about, how they are working, what is the syllabus they are recommending, the syllabus given to the student is appropriate with the student's mental age or not. It may not burden his mental abilities or stress his neurons, as educational system really affects the neurons of children development, because they are in their growing ages. So we must not burden their mental functioning and abilities with a course or a syllabus that is much hard for the student at that time. So this was the very first thing I noticed about this system, that इस सिस्टम में स्टूडेंट के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा डाल दिया जाता है, जबकि स्टूडेंट अपने 20-22 साल तक की उम्र में तो बिल्कुल ग्रोइंग एजेस में होता है, उसमें उसकी नशो नुमा हो रही होती है, उसकी ब्रेन्स की नशो नुमा हो रही है, उसकी बॉडी की नशो नुमा हो रही होती है. एक अगर आप उस बच्चे को हार्श वर्ड भी कह देते हैं, हार्श लफ्ज़ भी कह देते हैं, तो दैट इम्पैक्ट्स हिज लाइफ फॉर द होल लाइफ. उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो रुक जाती है. एज आई एम a victim of all these things, so I can surely say that these things affect a human being. Then if the person is lucky enough that he has been sent to a good school of Pakistan, when he is going to take his or her 8th standard, when he is going to promote it from 7th to 8th, here he has to face a challenge of his life. The first decision of his life, regarding his life and regarding his career, he has to opt or adopt in future. There is a myth and a misconception in Pakistan that we either have to be a doctors, we either have to be engineers. ठीक है. So most of the families influence their children to become a doctor, to become an engineer. They don't notice about the caliber of the student, the interest of the student, and above all his own potential, whether he can take the burden of those subjects or not. After sorting out these questions, we have to help the student whether he has to go for sciences, he has to opt for arts subjects, or he has to opt for computer sciences.
Now, it is for me, as at that time I was very fond of becoming a doctor, so I opted for sciences. My subject combinations were biology, chemistry, and physics. But there are students who at that time are in love with arts. They can excel in arts subjects. So, and so many people and peer group pressure and teachers want them to just take those subjects that the school is offering. They don't pay much attention towards the students need, what he or she can do with his or her interests. So here comes the problem for the student, that what subject should he choose. At metric level, this is the high time and a time of very competition in this country. मैट्रिक का टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड टाइम है आपकी लाइफ का, और बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटेंट टाइम भी है, कॉम्पिटिटिव टाइम भी है। इसमें आपका कंपटीशन का टाइम चल रहा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा फोकस स्टूडेंट का जो होना चाहिए वो होना चाहिए मार्क्स गेनिंग पे, क्योंकि आपके मार्क्स जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा आएंगे आपको आगे उसके हिसाब से किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो आप अगर अपने बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिज़िक्स के इंटरेस्ट यानी डॉक्टर के इंटरेस्ट में हैं, तो आप अपने जहन को ये उसी टाइम पे बता दें कि क्या आप डॉक्टर बन भी सकते हैं या नहीं। क्या आप जो बायोलॉजी का सब्जेक्ट है उसको पढ़ते हैं, अच्छे तरीके से कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं, जो उसमें लिखा हुआ है वो आपको प्रैक्टिकली भी समझ आता है, और ना सिर्फ प्रैक्टिकली समझ में आता है, उसको आप जाके पेपर पे बिल्कुल एग्जैक्टली डिलीवर कर सकते हैं, उसका एग्जैक्ट रेप्लिका के फॉर्म में। देन इन माय ओपिनियन गो फॉर बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स, ठीक है, यानी साइंसेस के सब्जेक्ट्स। अगर आप इन 3 सब्जेक्ट्स को सोचते हैं कि आप को जो आप सीख रहे हैं उसे आप समझ भी रहे हैं, और जो समझ रहे हैं फिर आप उसे अच्छे तरीके से पेपर पे प्रेजेंट भी कर सकते हैं, तो देन गो फॉर दीज 2 कॉम्बिनेशंस ऑफ मेडिकल और इंजीनियरिंग में जो आपको फर्दर हेल्प आउट करेंगी, यानी कि बायोकेमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स, ठीक है। ये तो हो गई एक डोमेन जिसमें हम लोगों का ज़्यादातर इंटरेस्ट होता है डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनने का, ठीक है। सेकेंड आता है आपके पास आर्ट्स के सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। आर्ट्स के सब्जेक्ट्स उन लोगों के लिए होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा वीक कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। आई एम सॉरी टू से दिस वर्ड वीक, दिस इज़ नॉट वीक। उनकी आर्टिस्टिक जो सेंस होती है वो शार्प होती है बनिस्बत इसके कि उनकी एक्सप्लोरेशन की, ऑब्ज़र्वेशन की, या फिर प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस की जो स्किल होती है इंसान के अंदर, उसकी निस्बत उनकी आर्टिस्टिक सेंस शार्प होती है और उनका आर्टिस्टिक इंटरेस्ट डोमिनेंट होता है, ठीक है। तो इसकी बेस पे उनको आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में जाने का दिल चाहता है, जबकि हमारे जो फैमिली सिस्टम्स हैं वो इस कदर उनके जहन में डॉक्टर या इंजीनियर बनने का भूत सवार होता है कि वो अपने बच्चों को सिर्फ चाहते हैं डॉक्टर और इंजीनियर्स बनते हुए देखना, जबकि हमारे पास वी हैव एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिस्ट अक्रॉस द ग्लोब जिन्होंने अपना लोहा मनवाया है बीइंग आर्टिस्ट, ठीक है। जबकि हमारे कंट्री में इतना ज़्यादा अप्रिशिएट या इनकरेज नहीं किया जाता। ये मेरे हिसाब से इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। ट्राई टू एक्सप्लोर द हिडन टैलेंट एंड हिडन इंटरेस्ट ऑफ योर चिल्ड्रन,
ये तो हो गई एक इंटरेस्ट की बात, और उसके अलावा आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन में रिगार्डिंग साइंसेस, आर्ट्स, एंड द थर्ड फील्ड वी हैव एट दैट लेवल इज़ कंप्यूटर साइंसेस, ठीक है. Most of the schools, as in the school where I was sent, so that was these students have to take if girls must have to study biology, and the boys are given the option, either they have to choose biology or computer sciences, or mathematics. I think that the student must be presented with the options he is having at that time. यानी उस स्टूडेंट को उस टाइम पे उस के पास जो जो ऑप्शंस हैं उसके बारे में वेल अवेयर कर देना चाहिए, उसको बता देना चाहिए कि ये तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं, तुम इन ऑप्शंस में से चूज़ कर सकते हो. अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सिस्टम है उसमें ऑप्शंस के बारे में बताया नहीं जाता, और उन्हें खुद ही कह दिया जाता है कि आप रखें जो मर्ज़ी रखना है. इसमें सेमिनार्स कंडक्ट करने का, करियर काउंसलिंग सेशंस रखने का जो रोल है वो और ज़्यादा मैं उजागर करना चाहूँगी कि ये वी नीड करियर काउंसलर्स इन दिस कंट्री. इसमें करियर काउंसलर्स की स्पेशल जॉब्स होनी चाहिए, और थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत मार्जिन के साथ होनी चाहिए, बिकॉज़ हमारा जो सिस्टम है वो सारा का सारा चल ही एजुकेशन पे रहा है, और स्टूडेंट्स पे रहा है, और यूथ पे रहा है. तो वो ही मिसमैनेज्ड वे में चलेंगे अगर, तो फिर कंट्री कैसे प्रोग्रेस और प्रॉस्पर करेगा. तो ये हो गए आपके 3 डोमेन्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स के, और मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स आर्ट्स का सब्जेक्ट है, और फिर कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन है आपके पास मैट्रिक लेवल पे. सर्च एंड टॉक with your seniors, search on yourselves, explore your talents, explore your mental abilities, explore your intellect, कि कितना आप इंटेलिजेंस है आपके अंदर, आप कितना बर्डन ले सकता है आपका ब्रेन, क्या चीज़ स्टडी कर सकता है, किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है. और स्कोप तो डेफिनेटली मैं आपको ये कहूँगी कि जितने ज़्यादा मार्क्स आपके आएंगे आप डॉक्टर अच्छे बन सकेंगे उसमें, ठीक है. ये डॉक्टर बनने के लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या है, द मोर हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट यू आर एलिजिबल फॉर बिकमिंग अ डॉक्टर, ठीक है. डॉक्टर बनना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, ठीक है. आसानी से कह देना या किसी को चीट कर लेना फैमिली में दैट वी आर बिकमिंग डॉक्टर इज़ नॉट वेरी ईजी. कहने में आसान है, बट प्रैक्टिकली करने में, परसू करने में और बिकमिंग में मुश्किल है. तो आप डॉक्टर सिर्फ बनना चाहते हैं इस बेस पे, आप डॉक्टर कभी भी नहीं बन सकते. आपको उसके लिए आपके पास ज़हानत का होना ज़रूरी है, आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट होना ज़रूरी है, आपके पास पेरेंटल सपोर्ट एंड गाइडेंस होना ज़रूरी है, आपके पास अच्छे टीचर्स का होना ज़रूरी है, और आपके पास अपने पर्सनल इंटरेस्ट का होना ज़रूरी है, ठीक है. ये हर फील्ड में एप्लीकेबल हैं बातें जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ. ये सारी बातें एप्लीकेबल हैं जो भी आप फील्ड चूज़ करना चाहें लाइफ की. तो हार्ड वर्क, परसिस्टेंस, इंटरेस्ट, और ये तो बेसिक चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं किसी भी चीज़ में, और फाइनेंशियल असिस्टेंस अबव ऑल, ठीक है. उसके बाद आ जाती है आपके पास, जब आप मैट्रिक क्लियर कर लेंगे, 8, 9, 10 मोस्टली हमारे स्कूल सिस्टम्स 8वीं, 9वीं और 10वीं क्लास में मैट्रिक का सिलेबस कवर कराते हैं, ठीक है. तो जब आप इससे गुजर जाएंगे, अच्छे ग्रेड्स और मार्क्स लेकर मैट्रिक का इम्तहान क्लियर कर लेंगे आप, देन यू हैव टू चूज़ अ कॉलेज, ठीक है. कॉलेज में जो आपने नेक्स्ट टाइम गुजारना है दैट इज़ फॉर 2 years पीरियड, ठीक है. सोच समझ के आपने कॉलेज में एडमिशन लेना है कि एक दफ़ा एडमिशन हो गया तो आपका उसके बाद वहाँ से कहीं आना जाना नहीं होगा. आपने 2 years वहाँ पे हर हाल में स्पेंड करने हैं, वेदर यू लाइक दैट कॉलेज
or not, ठीक है, or whether you have liked the subjects you have chosen or not. फिर then you have to follow all that you are given. In FSC you have options FA, FSC एंड ICS, ठीक है. इनमें ग्रुप्स बने होते हैं, डिफरेंट ग्रुपिंग होती है. FA प्री मेडिकल, सॉरी FSC प्री मेडिकल, FSC प्री इंजीनियरिंग, ठीक है. ये वही बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स वाले, यानी कि साइंसेस के साथ मैथमेटिक्स और बायो की कॉम्बिनेशंस के साथ जो दो कैटेगरीज़ हैं, इनमें जो 2 साल पढ़ेंगे, अच्छे नंबर लेंगे, एक्सेल कर पाएंगे, तो वो फिर फ्यूचर में मेडिकल कॉलेजेस में या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले पाएंगे, ठीक है. इसके अलावा हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन आता है वो कंप्यूटर साइंसेस के साथ होता है ICS का, ठीक है. इसके साथ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं. कोई किसी में मैथ्स के साथ कोई कॉम्बिनेशन बना होता है, किसी में स्टैट्स के साथ कोई कॉम्बिनेशन बना होता है, ठीक है. तो ये इस तरीके के कॉम्बिनेशंस के साथ ICS और ICOM के दो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है. ये मेरिट पे डिपेंड करते हैं सब कुछ, कि आपके मार्क्स कितने आए हैं, उसके हिसाब से कॉलेजेस ने अपना इनटेक का प्रोसेस रखा होता है कि इतने मार्क्स से लेकर इतने मार्क्स तक के स्टूडेंट्स को हम मेडिकल में एडमिशन देंगे, इतने से इतने मार्क्स वालों को हम इंजीनियरिंग में देंगे एडमिशन्स, इतने से इतने वाले फिर जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स होते हैं वो ICS ICOM में जा सकेंगे या आर्ट्स में जा सकेंगे, ठीक है. आई होप आई एम वेरी क्लियर, बिकॉज इस लेवल पे आके अंडरस्टैंडेबल मेरे लिए, कॉम्प्रहेंडेबल कभी किसी ने नहीं बनाई कोई भी चीज़. आई ट्राई टू मेक इट दैट सिंपल फॉर माई ऑडियंस कि किसी का भला हो इससे. आफ्टर स्पेंडिंग 2 years ऑफ योर टाइम इन ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, जिन्हें हम FSC या FA या ICS या ICOM कहते हैं, ठीक है. इन 2 सालों में आपने फिर से बहुत मेहनत करनी है. ऐसा नहीं है कि वंस यू हैव एंटर्ड द कॉलेज तो आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिल गया है, आप स्कूल टाइम रूटीन पढ़ने वाली ख़त्म और बस इन्जॉयमेंट. मोस्टली कॉलेजेस का हमारी कंट्री में अनफॉर्चुनेटली सिस्टम ऐसा है कि बहुत ज़्यादा लिबर्टी स्टूडेंट्स को दे देते हैं, जबकि स्टूडेंट्स उस एज में ना बहुत ज़्यादा स्पॉइल होने की टाइम में होते हैं, डिस्ट्रैक्ट होने के टाइम में होते हैं, जबकि उन्हें इस तरीके से छोड़ नहीं देना चाहिए. उनके ऊपर दे शुड कीप एन आई ऑन देम, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं होता. ना हमारे पेरेंट्स उस चीज़ पे फोकस कर पाते हैं, ना कॉलेज अथॉरिटीज़ कर पाती हैं. इट्स अ डायलेमा ऑफ दिस कंट्री. लेकिन आई होप कि बेहतर हो जाएं चीज़ें. देन आपने जब अपना FA, FSC और ICS ICOM कंप्लीट कर लिया, ठीक है, या आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के साथ FA अपना कर लिया कंप्लीट, ठीक है, तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है, आपने बैचलर्स करनी है, ठीक है. बैचलर्स के लिए आपके पास ऑप्शंस पाकिस्तान के अंदर स्कूल कॉलेजेस के भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ के भी हैं, ठीक है. इट डिपेंड्स ऑन द अफोर्डेबिलिटी ऑफ चिल्ड्रंस पेरेंट्स कि वो कॉलेजेस में सेंड कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को या यूनिवर्सिटीज़ में सेंड कर रहे हैं, ठीक है. I can 101% surely say this thing that if you are hardworking student on your own, from wherever you belong, from wherever you are being sent in educational system, किसी भी स्कूल में भेजा जाए आपको, किसी भी कॉलेज में भेजा जाए, किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको भेजा जाए, you are going to do wonders for the country, for your own self. अगर आपके अंदर खुद पोटेंशियल है, अगर आपके अंदर खुद सीखने का जज्बा है, अगर आप खुद हार्ड वर्किंग हैं, तो इट डजंट मैटर वेयर आर यू सेंट, ठीक है. तो इस चीज़ को आपने कंसिडरेशन में ज़्यादा नहीं रखना कि दैट यू बिलोंग फ्रॉम अ पुअर फैमिली, लो इनकम फैमिली, और दैट आई माई सेल्फ हैव स्टडीड इन कैंडल लाइट्स, इवन इन
uh, 2009 and 2010. Okay, these were the years of load sheddings in our country, as you all know. So and with a very weak eyesight, I have said it. So it doesn't matter. अगर आपके अंदर खुद है कुछ सीखने का जज्बा है तो यू कैन डू वंडर्स. बट बिल्कुल भी डिनाई डेफिनेटली नहीं किया जा सकता. एनवायरनमेंट ऑल्सो हेल्प्स अलॉट in your learning process. Then comes your master's education. पहले बैचलर्स का थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है सीन. बैचलर्स जो है वो एक 4 साला प्रोग्राम है, डिग्री है, ठीक है. पहले हमारे